Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcome you all to your maths class once again. So students, yesterday we have discussed one new topic of our chapter number 7, that is common multiples, that how we are going to find the common multiples and least common multiples. Okay, तो कल हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था बेटा, that is finding कॉमन मल्टीपल्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. ओके, तो हमने ऑलरेडी उसका एक डिस्कशन या उसका एक मैंने आपको एक प्रैक्टिस सम करके दिखाया था. आई हैव जस्ट शोन यू एन एग्जांपल ऑफ इट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू सम सम्स रिलेटेड टू दिस टुडे टू दैट क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड वट एवर आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे. तो जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू क्विक रिकॉल दैट फॉर फाइंडिंग अ कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, first of all you have to find the multiples. The first of all, okay, you can't find common multiples and least common multiples unless you are having two or more numbers. जब तक आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर नहीं होंगे तब तक आप कॉमन मल्टीपल या मल्टीपल्स फाइंड आउट कर ही नहीं सकते. बिकॉज इफ यू आर नॉट हैविंग एनी अदर नंबर for comparison or for differentiating, then how can you find out the then how you are going to find out the multiples of common multiples of the least common multiples. Okay, so the first of all, अगर हमें common multiple निकालना है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए that how we are going to find the multiples. सबसे पहले हमें multiples पता होंगे, then only then we can find out the common multiples, and after finding the common multiples you can find out the least common multiples. Just remember the multiples can common multiples and least common multiples can be find out only when you are having two numbers. जिन दो नंबर्स को कंपेयर करके उनकी कॉमन मल्टीपल निकालने हैं एंड देन आफ्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज. सो वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आई हैव गिवन यू एज अ होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे. Okay, so let's do question number 3. Okay, question number 3, sorry, we have discussed question number 1 and 2 and 3 I have given you as a homework. So I hope you understood. Okay, so let's begin with question number 4 now. Okay, so the question number 4 is list the first 3 common multiples of. So we have to list the common multiples only. हमें सिर्फ common multiples निकालने हैं. जो sum number 4 है उसमें we have to find only common multiples. That means no need to find the least common multiples. But for finding out common multiples you must find, first of all you must find multiples. मल्टीपल्स निकालोगे तभी कॉमन मल्टीपल्स निकलेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.5. एक्सरसाइज 7.5, that is question number 4, A part. So in A part you are having two numbers, that is 4 and 5. That is 4 and 5. These two numbers are here and first of all we are going to find the multiples. सबसे पहले इनके multiples निकालेंगे and then we will find common multiples. So shall we begin? Okay, let's begin with the first one. Okay, एक चीज ये देखिए, हमें क्या बताने हैं, first 3 common multiples. First 3 common multiples बताने हैं. Okay, so let's find out. So first of all multiples of 4. 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप स्मॉलर नंबर है कोई 1 to 10 तो यू कैन जस्ट राइट द टेबल ऑफ दैट गिवन नंबर. तो 4 का 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 8s are 4 and 5 is here na. Okay, I'll just write all the multiples down ताकि आपको क्लियर है. Multiples of 4 are, that is 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32,
4 9s are 36, 4 10s are 40, 4 11s are 40, 4 12s are 48. देखिए हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. ओके, अभी मैं इसको यही छोड़ रही हूं. ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपल्स ऑफ 5. Multiples of 5. First multiples of 5 is 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 six are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45, 5 tens are 50. देखिए अब हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले. फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स. देखिए 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है. देखिए आपको सिंपली क्या देखना है, 5 के टेबल में 5 या 10 जिसके 0 वही डिजिट आते हैं. इसमें सिर्फ 0 वाला एक 20 है एंड 1 इज 40. ना ही किसी और में पीछे 5 है, ना ही किसी में 0 है. सो दैट मीन्स वी विल जस्ट कंटिन्यू. ओके, तो मतलब हमें ये भी आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा. सो 48, देन 52, then 56, the last is 60. These all are the multiples of 4. Then यहाँ पे 55 and 60. ओके, सो देखिए बेटा इसमें हमें क्या किया. अब हम इस पे निकालें कॉमन एंड सो ऑन. ये दिस कंटिन्यूशन साइन इज मस्ट. एंड देन लास्ट वी विल फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स. COMMON कॉमन मल्टीपल्स. कौन कौन से हैं? फर्स्ट 3 निकालने थे. वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. सो दे आर, देखिए 20, here is 20 is also here, then 40 is also here, then 60 is also there. So the answer is 20, 40 and 60. So the first 3 common multiples of 4 and 5 are 20, 40 and 60. 20, 40 and 60. देखिए बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये सम, बट जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. देखिए अभी हमने सबसे पहले इसमें मल्टीपल्स निकाले. देखिए मैं आपको एक बार जस्ट दोबारा आई एम जस्ट टेलिंग यू. देखिए आपको पता है जो हमारा 5 का टेबल होता है उसमें हमेशा जो मल्टीपल्स होते हैं, सॉरी जो उसके आंसर्स होते हैं 5 का टेबल अभी हम कर लिखते हैं. पीछे वाले जितने या तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. मतलब 0 या 5 एनी नंबर हु इज हैविंग 0 और 5 एट इट्स वंस प्लेस. किसी भी नंबर में जहां उसके वंस प्लेस पे 0 या 5 होगा दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5. ओके, सो दैट मीन्स वो 5 के मल्टीपल्स हैं. बट इन दिस देखिए हमें कंपैरिजन करना है 5 और 4 के बीच में. बट 5 और 4 दोनों ही बहुत डिफरेंट है, क्योंकि 4 में पीछे हमेशा मोस्टली इवन नंबर्स होते हैं. जो 4 का टेबल है उसके पीछे इवन नंबर्स होंगे, मतलब 0 1 2 0 2 4 6 8 2 4 6 8 एंड 0. इसके पीछे जिनके पीछे 2 4 6 8 और 0 होगा दैट मस्ट मे बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4. बट जरूरी नहीं है. ओके, बट जो 5 के पीछे जिसके पीछे 0 या 5 होगा दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5. जिस नंबर के पीछे 0 या 5 होगा वो हमेशा जो 5 के जो है के मल्टीपल्स रहेंगे. ओके, तो इसलिए हमें थोड़ा लंबा सा फाइंड आउट करना पड़ा ताकि हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएं. देखिए हमने पहले 4 का टेबल लिखा 10 तक, यहां तक तो सबको आता है. उसके बाद देखिए 4 के टेबल में 4 4 4 4 का एड ऑन होता है. सो मैंने जस्ट वही किया है. जस्ट 4 11s are 44, 4 12s are 48, 4 13s are 52, 4 14s are 56, 4 15s are 60. क्लियर. फिर मैंने 5 का टेबल लिखा 5 10 15 50 तक सबको आता है. 5 11s are 55, 5 12s are 60. सो देखिए मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया कि देखिए 20 40 इसके अलावा कहीं कोई इस टेबल में 4 के टेबल में अप टू 10 तक
कहीं पे भी ऐसा कोई नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकता है? नो अगर किसी नंबर के पीछे 0 होगा या 5 होगा वही 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा. सो दैट मीन्स इसीलिए जो इन दोनों के जो मल्टीपल्स हैं फर्स्ट 3 वो सेम नहीं आए. ओके, सो दैट मीन्स इन दोनों के सेम फर्स्ट 3 मल्टीपल्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, आई हैव जस्ट रिटन द टेबल जहां तक कि दोनों में अप टू 3 जो मल्टीपल्स है वो सेम ना हो. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन, what I have done, just first of all I have written the table of 4 up to 15 तक 4 का टेबल लिखा. then I have written the table of 5 up to 12. ओके, फिर मैंने दोनों में कॉमन मल्टीपल्स ढूंढे. व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स बिटवीन 4 and 5? 4 is 20, here it is 20 is here and 20 is also here. then 40 is here, 40 is also here. then 60 is here, 60 is here. बेटा देखिए इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्यों था, इतना आपको कि मैम इतना लंबा लंबा सॉल्व करना है. इट इज नॉट अ वेरी बिग वन बेटा. ठीक है, नॉर्मली आपको अगर देखिए दोनों अगर इवन नंबर या दोनों अगर ऑड नंबर होते तो शायद उनके जल्दी मल्टीपल्स पता लग जाते. बट एक इसमें से इवन है, एक इसमें से ऑड नंबर है. तो 4 इज एन इवन नंबर एंड 5 इज एन ऑड नंबर. सो इनके जो मल्टीपल्स है वो सेम होने के चांसेस बहुत दूर तक जाके होंगे, बहुत पास में नहीं होंगे. So whenever you have to find the common multiples of or between an odd number and even number, then just go little further than 10. मतलब 10 से आगे भी आपको जाना पड़ेगा. तो एटलीस्ट राइट अप टू 15 और 20, मतलब उस नंबर को 15 या 20 तक मल्टीप्लाई करके लेके जाइए. 15 या 20 तक मल्टीप्लाई करते हुए लेके जाइए ताकि जो आपके एक ऑड नंबर और इवन नंबर के बीच में जो कॉमन मल्टीपल है वो निकल सके. ओके, सपोज अगर यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 होता तो शायद इजिली 4 और 6 का जो है कोई ना कोई पहले फर्स्ट 3 मल्टीपल्स निकल आते. बट 4 इज एन इवन नंबर, 5 इज एन ऑड नंबर, सो इट विल बी टेक टाइम और the multiples of both the numbers will be little bit far. Clear? So this is how we are going to solve the sum number 4. देखिए बहुत थोड़ा सा लंबा सम है. जस्ट राइट इट नीटली ताकि आपको समझ में आए. आई जस्ट ट्राई टू डू इट क्लियरली इन द नेक्स्ट पेज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई जस्ट ट्राई टू डू इट. So I hope now it is clear to you that first of all we have to find the multiples of 4. I have written the table of 4. That is 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40, 4 11s are 44, 4 12s are 48, 4 13s are 52, 4 14s are 56 or 4 15 multiply 15 is 60. Clear? After that I found out the multiples of 5 by multiplying 5 with number 1 to 12 or 1 to 15. So देखिए multiples of 5 are 5, 10, simply table of 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 के बाद 55 and 60. That is 5 11s are 55, 5 12s are, ये 12 5s are 5 12s are is 60. उसके बाद मैंने देखा कि दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं. तो कॉमन मल्टीपल्स बिटवीन 4 and 5 आर 20, 40 and 60. अगेन 20, 40 and 60. जस्ट अंडरलाइन कर लोगे तो आपको करना इजी रहेगा. क्लियर? आई नो इट इज अ वेरी लॉन्ग सम एंड आपको लगा होगा कि मैम बहुत बड़ा है इसलिए, बट इट इज नॉट बेटा. सम आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैंने ये पहले भी बहुत बार बोला है कि सम जितना लंबा एक्सप्लेनेशन में होगा दैट विल बी मतलब वो उतना ही इजी होगा करने में. क्योंकि जिस चीज को हम बहुत लंबाई से या बहुत देर तक करते हैं जेन्युइन पता वो चीज अच्छी होती है, और जिसको शॉर्टकट में करेंगे वो चीज गड़बड़ होगी ही होगी. क्लियर? सो दिस सम इज वेरी बिग नो डाउट, बट दिस इज अ वेरी सिंपल सम. इफ यू डू द प्रैक्टिस ऑफ similar sums, एक दो प्रैक्टिस करेंगे then you will easily get to know that how you are going to solve this kind of sums. Clear? Moving next to the B part, I'll just tell you to a B part also ताकि आपको easily solve करना आ जाए. Clear? Moving next to the B part, list the first 3 common multiples of B part में हमें किस किस के common multiples निकालने हैं? first 3, 2 and 4. So let's find out multiples of first 3 common multiples of 2 and 4. ओके, B is here. 2 and 4 दोनों के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स. सबसे पहले हमें मल्टीपल्स निकालने होंगे. सो राइट डाउन मल्टीपल्स ऑफ
2। 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, okay, 16, 20, sorry, 18 and 20. Okay, then multiples of 4, that means I will simply just write the table of 4. अब मुझे 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, that means I have simply write the table of 4. Clear? हमें simply 4 का टेबल लिखना है. So write down 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. क्लियर? अब इसके आगे आपको कंट्रीब्यूशन लगानी है. क्लियर? इसमें भी दिस साइन इज मस्ट. क्लियर? नाउ राइट डाउन कॉमन मल्टीपल्स. नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स. अब हमें इन दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. ओके, नॉट कॉमन, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. Sorry, the question is first 3 common multiples. So let's find out first 3 common multiples. फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से? पहले 3 देखिए, 2 इसमें है, नहीं है, 4 है इसमें भी है. दैट इज 4 is here and 4 is here. फर्स्ट इज here तो पहला लिखिए. नेक्स्ट 6 नहीं है. 8, yes, 8 is here also and 8 is here also. So next is 8. Clear? Now after that 10 is here, no, 12 is here, 12 यहाँ भी है and 12 is here also. So that is the next common multiple is 12. देखिए इसमें कुछ हमें बड़ा ज्यादा नहीं लिखना पड़ा. ओके, सो द फर्स्ट, देखिए इसमें हम कंटिन्यूएशन का साइन क्यों नहीं लगा रहे कॉमन मल्टीपल्स में? क्योंकि उन्होंने सिर्फ फर्स्ट 3 पूछे हैं. अगर उन्होंने पूछा कि कॉमन मल्टीपल्स बताओ तो हम उसमें लगाते 4-5 निकालने का, हमसे डैश 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 लगाते. बट दे हैव जस्ट सिंपली आस्क्ड इट फाइंड द फर्स्ट 3. फर्स्ट 3 तो 3 ही होंगे ना, 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते. सो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट रिटन दैट डैश डैश मार्क हियर. ओके, सो वी हैव जस्ट सिंपली लेफ्ट इट लाइक दिस ओनली. Clear? So first 3 common multiples are 4, 8 and 12. Is it clear? I hope now the concept is clear to you all कि कैसे solve करना है. First हमको देख के घबरा गए होंगे, बट इस को देख के थोड़ा समझ में आकर देखिए. One thing that both the numbers are even. So the दोनों नंबर even थे. So इनका जो common factor है find out करना is easy than the finding the common factors between an even and an odd number. Clear? सो इनमें इवन ऑड जो है ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता. ओके, सो हियर इट इज वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 4. तो उसके लिए सबसे पहले हमने व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 2. सबसे पहले हमने क्या निकाला? 2 के मल्टीपल्स निकाले. मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 and 20. अप टू टेबल 10 मैंने 2 का टेबल लिखा अप टू 20. आफ्टर दैट वी हैव फाउंड द टेबल मल्टीपल्स ऑफ 4. फिर हमने 4 का मल्टीपल निकालना, दैट इज 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 and 40. And then continuation sign. This continuation sign is must. Okay, don't forget to write this continuation sign. Okay, now in the question, according to the question, we have to find the only first 3 common multiples. हमें सिर्फ पहले 3 common multiples निकालने हैं. So that means the first 3 common multiples will be 4, 8 and 12. Is it clear? So this is our question number, this is our part number B of question number 4. I hope now the concept of finding common multiples is clear to you all. Suppose अगर हमें इसी क्वेश्चन में बोला जाता that you have to find the least common multiple also. If you have to, it was asked to find the least common multiple. अगर आपको इसी क्वेश्चन में वैसे तो पूछा नहीं गया है, suppose अगर पूछा जाता कि आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बताना है. सो व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल?
द लीस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी 4. कि सबसे छोटा मल्टीपल्स में जो होता है कॉमन मल्टीपल्स में, दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल. सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? दैट इज 4. क्लियर? I hope now the concept of finding common multiples and the least common multiple is clear to you all. But still we are going to do some more sums so that it is clear to you all. Okay. So the next question number 4, the next part of question number 4 is C and D. In the C part you have to find the common multiples between 2 and 5. As you can see 2 and 5, one is odd, one is even. So that means उसका भी टेबल आपको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा. The second one is 6 and 8. That is both are even numbers. So that means their factor जो इसका multiples है वो थोड़े 10 या 15 तक में complete हो जाएंगे. Clear? So these two parts you are going to solve by yourself only. Okay? So your today's homework is that you have to do C and D part of sum number 4. Okay? Moving next to the fifth sum. What is there in the fifth sum is, what is there in the fifth sum? The fifth sum says, find the common multiples and hence the least common multiple of the following. So in this you have to find the common multiple and the least common multiple as well. जैसे कि मैंने आपको इस सम में समझाया था कि अगर इसका least common multiple होता है कौन सा होता है, same as it is in sum number 5 we have to find both common multiple and the least common multiples. Yes, for finding out common multiples, first of all we have to find the multiples. We have to find the multiples of the numbers. Okay, so I'll just erase it first, then begin with our next sum number 5. Okay, बेटा I'm just erasing it ताकि space है जो cover जो हो रही है वो ना हो. I'll just write the exercise number here. Exercise 7.5. Clear? Yes. Sum number 5 is that you have to find the common multiple and the least common multiples of 2 and 3. That is part A. A is 2 and 3. इसका हमें common multiple और least common multiple find out करना है. Clear? So first of all we will find out the multiples. Multiples of 2. 2 के multiples क्या होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. इसको हम कंटिन्यूशन डाल देंगे. अगर और चाहिए होगा तो हम इस कंटिन्यूशन साइन को इरेज करके आगे बढ़ा देंगे. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3. मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 and so on. Clear? Now we have to find the common multiples. देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाले? Multiples of 2. Then we have find out the multiples of 3. Now we have to find the common multiples. हमें common multiples निकालने हैं. So common multiples कौन से होंगे? Common multiples देखिए इसमें उन्होंने ये नहीं बोला that you have to find the first 3, first 4 या first या second जो भी है उन्होंने नहीं बोला. They have just told us to find the common multiples and the least common multiples. So there is no foundation for finding the number of common multiples. चाहे तो आप 2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 फाइंड आउट तो करने ही चाहिए. या तो आप 2 भी कर सकते हैं कॉमन मल्टीपल, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी करते हैं. इट इज अप टू यू ओनली. ओके, देयर इज नो नंबर दैट कि आपको कितने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो वी विल फाइंड आउट जितने भी आपके यहाँ तक हो सकते हैं उतने हम कॉमन मल्टीपल्स के सर्च करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज 2 is here, no sorry, 2 is not here, 4 is not here, 6 is here also and here also. So the first common multiple is 6. Next 8, no. 10, no. 12 is common, yes. 12 is common in both the tables. Then we will write 12. Next 14, no. 16, no. 18, yes. 18 is here and 18 is also given here in table of 3.
So that is 18. That is the third common multiple. Then next 20. 20 is not here. So देखिए अब इसमें हमें इन्होंने बताया नहीं कि कितने हमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने जस्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट किए एंड लेफ्ट द सम हियर. तो मैंने और यही सम छोड़ दिया. Clear? So it is up to you if you if you want to find more multiples, common multiples, then you can. But I believe that this is a wastage of time. कि अगर आप इससे भी ज्यादा 5-6 जितना ज्यादा आप मल्टीपल्स फाइंड आउट करोगे, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करोगे, देन इट विल कंज्यूम यू मोर टाइम. ओके. और एग्जाम टाइम में आपका इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के उसके मल्टीपल्स, एक ही सम के मल्टीपल्स फाइंड आउट करते रहो और बाकी जो नंबर 80 नंबर है उसको पानी में जाने दो. ओके. So just leave it. Okay, just at least find just 3 common multiples and that is more than enough. Okay, the next is that we have to find the least common multiple. Next is least, सबसे छोटा common multiple. Least common multiple. Least common multiple of 2 and 3 is, कौन सा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का? That is 6. That is 6. So therefore least common multiple of 2 and 3 is 6. Clear? So the least common multiple of 2 and 3 is 6. I hope now this is clear to you all. That how you are going to find the multiples, common multiples and the least common multiples. Okay class? So I'll just repeat it one more time so that if you're having any kind of confusion, it will be clear to you all. So according to the question number 5, A part, we have first of all we have to find the common multiples and hence the least common multiples of the following. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं आपको कल भी मैंने बताया था, आज भी हमने जो 2 दिन सम सॉल्व किए उसमें भी समझाया कि अगर आपको किसी भी सम में कॉमन मल्टीपल्स या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स. सो दैट्स व्हाई वी हैव फाउंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाउंड द मल्टीपल्स. तो हमने किसका मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे? जो हमें 2 नंबर या 3 नंबर्स दिए होंगे. सो मल्टीपल्स ऑफ 2 इज सिंपली वी विल जस्ट राइट द टेबल ऑफ 2. क्लियर? First of all, I have written the table of 2, that is 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18 and 20 and so on. This is a sign of continuation and this sign is must. This sign is must in the multiples. अगर इसको नहीं लिखोगे that will be considered wrong. इसका मतलब है कि आपको लगता है कि और कोई मल्टीपल हो ही नहीं सकता इसका. So that's why you have to write this sign of continuation. Clear? Then next, multiples of 3. Then we have found the multiples of 3. So that means we have written the table of 3, that is 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30. And after that same as it is, as we have done above, continuation sign. Clear? Next, multiples are there. Now we can easily find the common multiples. Multiples हमने already निकाल लिए, तो दैट मीन्स अब कॉमन मल्टीपल्स भी हम इजिली निकाल सकते हैं. तो इट इज अप टू यू. यू वांट टू फाइंड 2 मल्टीपल्स, 2 कॉमन मल्टीपल्स, 3 कॉमन मल्टीपल्स, 4 कॉमन मल्टीपल्स. इट इज अप टू यू ओनली. बट फ्रॉम माई साइड एटलीस्ट फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ एवरी नंबर. ओके. सो द 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 are 6, 12 and 18. After then you will find, after then you will just again put this sign of continuation. क्योंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि फर्स्ट 3 या फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल बताओ. उन्होंने सिंपली क्या पूछा है? फाइंड द कॉमन मल्टीपल. सो दैट मीन्स इसके बाद ये कंटिन्यूशन साइन क्या शो करेगा? दैट इज इट इज हैविंग मोर कॉमन मल्टीपल्स. ये साइन ऑफ कंटिन्यूशन क्या बता रहा है कि इसके बाद भी और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं. क्लियर? देन we are having the multiples, we are having the common multiple, and after that we will find the least common multiple. Least means सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स में. कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? दैट इज 6. That is 6. So that's why we have written least common multiple of 2/3, 2 and 3 is 6. Clear? So this is your A part of sum number 5 of exercise 7.5 and I hope you understood. Okay, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 they both are same questions.
बट द डिफरेंस इज ओनली दिस कि एक में आपको सिर्फ कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं और दूसरे में आपको कॉमन मल्टीपल्स के साथ साथ लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है. क्लियर? So now your today's homework is that you are going to try question number C and D of fourth sum and B part of fifth sum. Clear? B part of fifth sum, C and D of fourth sum. Okay, so now I'm ending your today's session. So this is all for our today's class. I'll see you again in your next class. So till then everybody have a great day and study hard and revise all your work daily. Clear? So have a good day beta.